Hello students, welcome back to SST class for class 7. Today we are going to start the same chapter of geography, lesson number 13, Earth's movement and changing landform. As you all know, in the earlier videos we have already discussed about how the different landforms, what are the different processes by which different landforms are formed. We studied about weathering, erosion, deposition, and also we studied about the riverine landforms, what are the different course or path of a river. It is divided into three: upper course, lower course and middle course. Today we are going to study about the glacier landforms, how glacier help in forming or changing the landforms, wind landforms, how wind help in the formation of different landforms, and marine landforms. First we are going to discuss about the glaciers landform. What are the different landforms which are formed by the glaciers? Now first we are going to discuss what is the meaning of glaciers. When we talk about glaciers, they are also known as river of ice. Now what are glaciers? When snow which is accumulated, the meaning of accumulation is, या accumulated is इकट्ठा होना. कोई भी चीज जहां पे कहीं पर इकट्ठी होती है उसके लिए वर्ड आता है accumulation या accumulated. When snow which is accumulated in valley, the area which is covered by mountains from all sides is called valley. When snow which is accumulated in valley moves down the slope of mountain due to the action of gravity, it forms a river of ice which is known as glacier. So in short we can also say glacier is the river of ice which is accumulated. When snow is accumulated in valley and it moves down slowly, because in mountain there is slope, slant is there, mountain, due to the action of gravity, it forms a river of ice which is known as glaciers. Now what are the features which are formed which are formed by the glacier? First is U-shaped valley. U-shaped valley is formed by the help of glaciers. As glacier moves, when the glacier moves in the valley, it carries rock fragments. It carries, जो ग्लेशियर जब मूव करते हैं, क्योंकि ये वो क्या है, रिवर ऑफ आइस है, जो मूव करते हैं तो अपने साथ क्या लेकर आते हैं, रॉक फ्रेगमेंट्स, रॉक के पीसेस, ग्रेवल, कंकर एंड इरोड, और अपने साथ जो इरोड करते रहते हैं, थोड़ा उखाड़ते रहते हैं, बोथ द बेड एंड द साइड्स ऑफ इट्स वैली. उस समय जो शेप फॉर्म होती है उसे कहते हैं यू शेप वैली. अगेन एज ग्लेशियर मूव्स इट कैरीज, जब ग्लेशियर मूव करते हैं तो वो अपने साथ क्या बहा के लाते हैं, रॉक फ्रेगमेंट्स, ग्रेवल एंड इरोड बोथ द बेड जो लोअर पोर्शन होता है एंड द साइड्स ऑफ द वैली. वैली का बेड को भी इरोड करते हैं, साइड्स को भी इरोड करते हैं. उससे जो ग्लेशियर से जो शेप फॉर्म होती है वैली की, उसे बोला जाता है यू शेप वैली. नेक्स्ट है कॉरी और सिल्क. दोनों का मीनिंग एक ही है. इन माउंटेन ग्लेशियर्स मेक डीप हॉलोज. माउंटेन्स में ग्लेशियर्स क्या फॉर्म करते हैं, डीप हॉलोज फॉर्म करते हैं. फॉर्मिंग आर्म चेयर. और कैसे हॉलोज होते हैं, आर्म चेयर. आर्म चेयर माने ऐसी चेयर जिसमें हाथ रखने का भी सपोर्ट होता है, उसे बोला जाता है आर्म चेयर. तो व्हेन दीज ग्लेशियर इन द माउंटेन्स मेक डीप हॉलोज फॉर्मिंग आर्म चेयर शेप डिप्रेशन इज कॉल्ड कॉरी और सिल्क. और ये जो कॉरीज और सिल्क हैं, दीज आर द मीनिंग ऑफ द सेम. और ये मेनली जो कॉरी है ये स्कॉटलैंड में बोला जाता है इसके लिए वर्ड, और सिल्क जो वर्ड है वो फ्रांस में यूज होता है. अगेन इन माउंटेन्स ग्लेशियर्स मेक डीप हॉलोज फॉर्मिंग आर्मचेयर लाइक शेप डिप्रेशन विच आर नोन एज कॉरी और सिल्क. कॉरी वर्ड यूज होता है स्कॉटलैंड में और सिल्क वर्ड यूज होता है फ्रांस में. नेक्स्ट है कॉरी लेक. जैसे नाम से ही पता चला है कॉरी लेक विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉरी, और इसे टान भी बोला जाता है. द कॉरी इज फिल्ड विथ वाटर. व्हेन दिस कॉरी जो आर्म शेप डिप्रेशन है, हॉलो डिप्रेशन है, जो वो किससे फिल हो जाता है,
with water forming lake is called Kori Lake or Tarn. Again, what is Kori Lake or Tarn? The Kori is filled. What is Kori? जो ग्लेशियर्स फॉर्म करते हैं डीप हॉलोस माउंटेन में आर्मचेयर शेप के, उस आर्मचेयर शेप में जब वाटर फिल हो जाता है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, उसे बोला जाता है कॉरी लेक और टर्न. नेक्स्ट है मोरेन्स, द डिपॉजिट फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर मेल्ट्स. जब ग्लेशियर मेल्ट्स होते हैं वो जो अपने साथ रॉक्स, बोल्डर्स, ग्रेवल, सैंड जो अपने साथ बहा के लेके जाते हैं, जब वो ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं तो उन्हें वो डिपॉजिट कर देते हैं एंड लीव बिहाइंड द लोड, उसे बोला जाता है मोरेन्स. मोरेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन द ग्लेशियर्स, all those things which they bring with them like boulders, rocks, sand, gravel, and when these glacier melt they deposit all the load which they carry with them, और इसी लोड से जो फॉर्म होता है उसे बोला जाता है मोरेन्स. अगेन ग्लेशियल लैंड फॉर्म से क्या क्या फॉर्म होता है? यू शेप वैली, कॉरी और सिर्क, कॉरी लेक एंड मोरेन्स. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विंड लैंड फॉर्म्स. How wind helps in the formation of different landforms. First है mushroom rocks. ऐसे नाम से ही पता चला है mushroom rocks. You must have seen mushroom, or we can say it is the shape of an umbrella like this. Clear? When erosion of rocks, जब erosion take place करता है rocks का, is maximum at base as the wind cannot carry. And one more thing, जो wind landforms होते हैं these are mainly formed in the sandy या desert area, जहाँ पे sand क्या होती है, loose होती है, dry होती है, तो wind उसे easily blow कर सकती है. तो these features are mainly formed in the desert area. When erosion of rocks is maximum at the base, जो erosion वो होता है वो maximum at the base होता है. As the wind cannot carry the sand to height, जो wind होती है तेज तो चलती है पर सैंड का भी थोड़ा वेट होता है, उसे ज्यादा हाइट तक नहीं ले जा सकती. तो जो इरोजन होता है बेस में ज्यादा होता है रॉक्स के, sand to the height leading to the formation of mushroom rocks. Then mushroom rocks are formed. Again, how mushroom rocks are formed in desert area? When erosion of rocks is maximum at the base. जो rocks का erosion होता है बेस में ज्यादा होता है. उसका रीजन क्या है बेस में ज्यादा क्या होता है? क्योंकि जो रॉक्स होता है वो सैंड को ज्यादा हाइट तक कैरी नहीं कर सकता और उससे क्या फॉर्म होते हैं? मशरूम रॉक्स. उनकी शेप ऐसे होती है क्योंकि इरोजन बेस में ज्यादा हो रहा है, वहां पे गिर जा रहे हैं, इरोड हो जा रहे हैं रॉक्स और ऊपर ब्रॉड रहते हैं. नेक्स्ट है सैंड ड्यून, या हम कहते हैं हिल्स ऑफ सैंड. व्हेन द स्पीड ऑफ विंड डिक्रीजेस, जो विंड की स्पीड है जब वो डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है, इट डिपॉजिट द सैंड एंड पार्टिकल्स इट वाज कैरिंग अलोंग विद इट एंड हिल ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, इज कॉल्ड सैंड ड्यून या हिल ऑफ सैंड भी बोला जाता है सैंड ड्यून को. जो व्हेन द स्पीड, जो विंड की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जो विंड अपने साथ सैंड को ब्लो करके लाती है और धीरे धीरे उसकी जब स्पीड कम हो जाती है तो विंड से जो सैंड होता है वो सारा एक जगह डिपॉजिट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, धीरे धीरे वो किसकी शेप ले लेता है? एक हिल की. और उसी हिल को बोला जाता है सैंड ड्यून, जो सैंड का हिल होता है. और इसकी कोई परमानेंट प्लेस नहीं होती, दे कीप ऑन मूविंग या शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो सैंड ड्यून होते हैं. नेक्स्ट है लुइस. व्हेन सैंड इज कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस, जो सैंड होते हैं काफी दूर डिस्टेंस में ले जाए जाते हैं, डिपॉजिटेड ओवर लार्ज एरियाज बियॉन्ड द डेजर्ट एरिया. जब विंड्स उस सैंड को काफी दूर डिस्टेंस ले जाती है, बियॉन्ड मतलब डेजर्ट एरिया से भी दूर ले जा लेती है उस सैंड को, डेजर्ट एंड लिमिट्स ऑन द नेबरिंग लैंड, और उसे कहाँ रख देती है? नेबरिंग लैंड में वहां पे कर देती है, उसे बोला जाता है लुइस. When sand is carried to great distances and deposited over large areas beyond the desert limits on the neighboring land, उसे बोला जाता है lowest. Next oasis, as you already heard, what is oasis?
ओएसिस वो एरिया होता है डेजर्ट एरिया में जहां पे अंडरग्राउंड वाटर होता है. मेनली पीपल लिव नियर द ओएसिस. When wind blows away sand to create hollows, जो विंड होती है वो सैंड को ब्लो अवे के वहां से हटा देती है और हॉलो गड्ढा क्रिएट कर देती है. एंड ग्राउंड वाटर कम्स, और वहां पे ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता जाता है सरफेस पे, उसे बोला जाता है ओएसिस. These are the features which are formed by wind in the desert area. Mushroom rocks, sand dune, loess and oasis. Now next is marine landforms. When we talk of marine landforms, waves carve out sea cliffs or steep vertical rocks facing the sea. These features or landforms are formed by the sea waves, ocean currents and tides. Caves are formed and further erosion causes earth. जो सी वेव से है या ओशन करंट से या टाइड से जो केव्स फॉर्म होते हैं, ये केव्स धीरे धीरे और इरोड होते जाते हैं और आर्क की फॉर्म लेते हैं. दिस इज द शेप ऑफ द आर्क. एंड द स्टम्प्स, और स्टम्प्स की शेप. स्टम्प्स कैसे होते हैं? केवल जब ये वाला पोर्शन भी हट जाता है तो केवल ये रह जाता है, उसे बोला जाता है स्टम्प, जो धीरे धीरे इरोजन करता रहता है. Second है beaches are formed. Waves may also deposit the sand and the eroded material. जो waves होते हैं वो अपने साथ जो बहा के लाते हैं sand और eroded material, उसे धीरे धीरे शोर, समुद्र के किनारे या सी शोर में इकट्ठा करते रहते हैं. उससे जो फीचर्स फॉर्म होते हैं उसे बोला जाता है बीचेस. नेक्स्ट है lagoons, a part of the sea water that cut off by a sandbar getting deposited along the sea coast by sea waves. Now what are lagoons? A part of the sea water. जो सी वाटर का एक पार्ट है जो अलग हो गया, कट ऑफ हो गया. किसके द्वारा कट ऑफ हो गया? बाय अ सैंड बार. और सैंड बार क्या है? जो सी अपने साथ कंकड़ पत्थर इकट्ठे करती रहती है और वो एक लॉन्ग इलोंगेटेड एरिया बन जाता है उससे. और जब ये सैंड बार गेटिंग डिपॉजिटेड अलोंग द सी कोस्ट बाय सी वेव, सब ये लेगून्स फॉर्म होते हैं. तो आज हमने क्या पढ़ा? व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स फॉर्म बाय ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स? These are U-shaped valley, Corrie, Silk, Corrie Lake, moraines and icebergs also. One thing I have left, icebergs. When we talk about icebergs, these are when the glaciers, they fell in the sea and they break down and start floating. These huge masses of ice are called icebergs. Now when we talk about wind landforms, we talk about mushroom rocks, sand dune, loess and oasis. Now in marine landforms, we studied about sea cliffs, caves, arches, beaches and lagoons.